Ankur Badhwar, and this is fourth week करंट अफेयर्स वीडियो। ये फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल की करंट अफेयर्स वीडियो पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 1 एंड अगर जरूरत पड़ी तो पार्ट 3 भी हम लेके आएंगे। नाउ दे हैव बीन मैनी रिक्वेस्ट बाय मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दे आर आस्किंग मी फॉर द क्वेश्चंस, okay, quiz type. So I will be making videos on that on the weekly basis, that I will start from first week of April, okay, that I will do. But what I will do, that in between the current affairs also I will be telling you all the probable questions which can come from the current affairs। जो भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं इन करंट अफेयर्स में, वो भी मैं आपको हर एक न्यूज़ आइटम के साथ मैं बताता रहूँगा, so that you can get an idea what kind of question can be expected from the current affairs as based on RBI grade B pattern, okay, RBI grade B and CB grade A and all the like NABARD grade A, these kind of examination based on the past year patterns, I will be telling you what kind of question they are forming and how they are forming the question from the current affairs which are कमिंग ऑन द डेली बेसिस। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको किस, अगर कोई आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आपको कैसे, मतलब लाइक यू हैव टू जज व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी फॉर्म फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स। इसके अलावा मैं क्विज वीडियोस भी लेके आऊँगा जिसमें मैं डिटेल में क्वेश्चन भी आपको दूंगा करंट अफेयर्स में से, वीकली बेसिस पे मैं लेके आऊँगा। डेली थोड़ा हेक्टिक हो रहा है मेरे लिए बिकॉज मुझे ये से भी जल्दी स्टार्ट करना है, ऐसे भी स्टार्ट करना है। Okay, so let's start. This is subfolder number 1. 1.4 I already told you. 1 is subfolder number 1. There are 15 subfolders for the current affairs and 4 is the month of April. Okay, so first news. Wary of opportunities take over, government tightens FDI rules. Now FDI, foreign direct investment, you all know what has happened recently in SDFC Bank. The Central Bank of China has increased stake from 0.80 to 1.01%, and that has alarmed the Indian government, and Indian government has taken plenty of steps. SEBI also, which is the regulator of the capital markets, and they have taken the steps. Now let's see what kind of question can be formed. Now whatever the FDI coming, the clearance will be required from the government of India. Okay, would see government clearance. That is the current affairs. The clearance will be required for even indirect FDI originating from this country, but routed through destinations such as Singapore and Mauritius. Now you should know what is indirect and what is direct FDI. See, whenever a company invests, when a foreign portfolio investment comes in any company, okay, if the shareholding is less than 10%, if they are buying the shareholding less than 10%, then it will be simply known as FPI, foreign portfolio investment. But if it becomes equal to 10% or greater than 10%, then it will be categorized as FDI by the government of India. ये डेफिनेशन रिसेंटली 2-3 साल पहले चेंज हुई थी, उससे पहले ऐसी कोई कैटेगराइजेशन नहीं थी। ओके, सो अभी आप देखोगे रिसेंटली फेसबुक ने इन्वेस्ट किए जियो के अंदर। ओके, फेसबुक हैज़ बोट 9.9% ऑफ शेयर्स ऑफ जियो। एंड वाई 9.9%? बिकॉज अगर 10% करते हैं देन इट विल बी कैटेगराइज FDI, फिर उसमें और रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई हो जाते हैं। सो दे हैव बोट 9.9% ऑफ शेयर्स ऑफ जियो। सो ये क्वेश्चन RBI 2008 भी RBI में 2017 या 18 में आ चुका है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि सेबी या नाबार्ड या RBI में भी फिर से ये रिपीट हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल। ओके, सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम। लेट्स सी डिपार्टमेंट ऑफ, इससे पहले ये देख लेते हैं DPIIT, आई टोल्ड यू इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, इशूड अ प्रेस नोट इसी के बारे में, मार्केट रेगुलेटरी से भी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर्स, हमने पिछले साल की वीक में जो किया था उसमें ये बताया था कि UBO, इट इज टर्म्ड एज UBO, इसकी एब्रीवेशन भी आ सकती है, ध्यान रखना ये क्या होता है। और फॉर FEMA कब आया था? 1999 में आया था। ओके, ये भी हमने स्टैटिक क्लास में किया था। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इस करंट अफेयर्स में से, सीट केयरफुली। पहला क्वेश्चन बन सकता है आपके, सबसे ज़्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है? तो मैंने ये भी बताया था पिछले वीक की वीडियो में, USA से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, दूसरा हमारा मॉरिशस से आता है। ओके, मॉरिशस। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है फर्स्ट MCQ की, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है, सेकंड हाईएस्ट कहाँ से आती है,
मॉरिशस आते हैं। मॉरिशस आल्सो नोन एज टैक्स हेवन। टैक्स हेवन वो होते हैं जिसमें टैक्स रेट बहुत ज़्यादा कम होता है। वन क्वेश्चन। सेकेंड एमसीक्यू आपका बन सकता है आपका कि मॉरिशस की कैपिटल क्या है। ओके, सो इट इज पोर्ट लुइस। ओके, तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मॉरिशस की करेंसी क्या है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इसकी करेंसी क्या है। ओके, कमेंट सेक्शन में बताओ या लाइव चैट में बताओ कि इसकी करेंसी क्या है मॉरिशस की। सो चौथा क्वेश्चन, जो चौथा एमसीक्यू इसमें से बन सकता है जो डीपीआईआईटी इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। पांचवा एमसीक्यू बन सकता है आपका कि डीपीआईआईटी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि मार्केट का रेगुलेटर कौन सा है, सेबी है। आई थिंक ये क्लियर होगा, इसमें बताने की भी जरूरत नहीं है। और फेमा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है या पूछा जा सकता है कि फेमा किस ईयर में आया था। सो यू विल सी कि 6-7 एमसीक्यूज इस करंट अफेयर में से निकल रहे हैं जो आरबीआई आपसे पूछ सकता है, या फिर सेबी पूछ सकता है, या फिर नाबार्ड या फिर एसबीआई, और ये सब एग्जामिनेशन भी पूछ सकते हैं। ओके, so likewise I will be telling you the MCQs which can be formed from the other from all the current affairs. क्विज वीडियोस में मैं लेके आऊँगा, वो अलग से लेके आऊँगा। ओके, एवरी वीक। अभी आप देखोगे दिस इज फोर्थ वीक करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चारों वीक्स के मैं क्विज वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया, पर्सनली भी मुझे मैसेज किया, तो आई थिंक इट्स टाइम टू वैसे जरूरत नहीं है बट स्टिल जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स प्रॉपरली कर रहे हो, मेरी वीडियोस प्रॉपरली देख रहे हो, तो ऑलरेडी आई एम टेलिंग यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी फॉर्म। हाँ, फर्स्ट सेकंड में इतना नहीं बताया था बट आई एक्सपेक्टेड कि आपको पता होगा बेस्ड ऑन दी पास्ट ईयर पेपर्स, क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजी वीडियोस भी लेके आया था। 4 स्ट्रेटेजी वीडियोस में लेके आ चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी अभी तक स्ट्रेटेजी वीडियो, प्लीज़ इसको देखिए। जो स्ट्रेटेजी वीडियो 3 एंड 4 था उसमें पूरा जो 2018 का एग्जामिनेशन हुआ था आरबीआई गेट बी का फेज 1 का, एक एक क्वेश्चन का मैंने पूरा एनालिसिस किया। ये भी बताया कि अगर एग्जाम अगस्त में था तो उससे कितने महीने पहले से कितने क्वेश्चन आए थे। ये भी बताया कि ये जो सब फोल्डर्स मैंने बना रखे हैं उसमें से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, जो फोल्डर्स बना रखे हैं स्टेटिंग में से कितना आया था, पूरा डिटेल, एक एक क्वेश्चन की डिटेल है उसके अंदर। सो प्लीज़ स्ट्रेटेजी वीडियोस देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, so let's go to next current affairs. SEBI digging deeper into the FPI composition. FPI foreign portfolio investment. अभी देखो यहाँ पे लिखा भी आप foreign portfolio investor single FPI can own up to 9.9% equity of a listed stock. Beyond that, the entire holding is considered as FDI. So this is an important question which is likely to come in your SEBI this time also, because it is very much in news, because जो चाइना पे restrictions लगाए इंडिया ने indirectly, दिस इज इन क्वाइट न्यूज। ओके, सो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है कि एक तो यही क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा इसमें आप देखोगे एफ और एफ की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, बट दैट विल बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ, एसबीआई और आईबीपीएस में नॉर्मली इतने सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मतलब एफडीआई की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, एफपीआई की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, एफआईआई की फुल फॉर्म पूछ लेंगे। सच काइंड ऑफ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम इन सेबी और ओ सॉरी सेबी नहीं, एसबीआई और आईबीपीएस, एलआईसी, इनमें बहुत सिंपल सिंपल जनरल अवेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट सेबी आरबीआई में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स की ही अगर मैं बात करूँ तो। ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट करंट अफेयर। आरबीआई बाय ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन अप्रैल, फर्स्ट साइन ऑफ मोनेटाइजिंग डेफिसिट। इस पे काफी क्वेश्चन बनेंगे आपके करंट अफेयर्स के, एमसीक्यूज काफी बनेंगे, स्टे ट्यून्ड। RBI by tertiary bills. What is T bills? T bills are tertiary bills, and it is issued by only the सेंट्रल गवर्नमेंट। ये यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट 1 मार्क्स का एमसीक्यू था। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि टर्शियरी बिल कौन गवर्नमेंट इशू कर सकते हैं, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू। फर्स्ट एमसीक्यू आपका ये बन गया, ठीक है। उसके बाद मोनेटाइजिंग डेफिसिट क्या होता है, देखो ये एक स्टैटिक कंसेप्ट है, मैंने फिजिकल पॉलिसी में भी डिटेल में किया था, मैं फिर से बता देता हूँ। जब भी जो फिजिकल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अगर आरबीआई उसको मतलब पैसे देती है उसको फुलफिल करने का, उस डेफिसिट के लिए, जिसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए जब भी आरबीआई पैसा देती है उसको हम बोलते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट और मोनेटाइज डेफिसिट। ओके, एफआरबीएम एक्ट ने बोला था कि आपको अलग रखना है, आपको आरबीआई से बोरो नहीं करना अपने डेफिसिट को, बट जो होता है वो यही होता है। ओके, लेट्स गो अहेड।
Now see, Reserve Bank of India has bought government bonds receivable for second time for the first time to push down yields. अब देखो yield पे भी बहुत स्टूडेंट्स ने मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं। मैं इस वीडियो के एंड में आपको पूरा मैं बताऊंगा, इस वीडियो के एंड में या नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में, नहीं इस वीडियो में एंड में कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबी नहीं हुई। देखो मैं पूरा रिलेशन बताऊंगा, जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है बॉन्ड प्राइस के ऊपर, और बॉन्ड प्राइस का क्या रिलेशन है बॉन्ड यील्ड से। इस सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा अभी प्रेजेंटली ये बॉन्ड प्राइस बॉन्ड यील्ड के बहुत ज़्यादा न्यूज़ आने लग गई है आपके फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में कि ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली। मैं पूरा आपको पूरी कहानी इसकी मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, जो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। बाकी आपके करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और डायरेक्टली दे आर बेस्ड ऑन दी जो पूरा का पूरा ट्रेंड है आरबीआई और सेबी का, उसके ऊपर पूरे बेस्ड है करंट अफेयर्स। सो वेरी वेरी रेलेवेंट, कोई फालतू की कोई भी न्यूज़ नहीं है जिससे आपके बस जो करंट अफेयर्स हो बल्कि हो और आपको एंड में रिवाइज करने में दिक्कत हो। एकदम प्रिसाइज टू द पॉइंट एंड वेरी रेलेवेंट फॉर फेज 1 एज वेल एज फेज 2। और मैं खुद बना रहा हूँ इसको, किसी से ले नहीं रहा। सो लेट्स गो अहेड। और आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं टेलीग्राम में हुई, कभी भी आपको कुछ भी पूछना हो मेरे से आप पूछ लिया करो। ओके, आई वॉन्ट ईच ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट टू एक्सेल। कम से कम फेज़ 1 जो है जिसके मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ उसमें आप 65 से कम मत लेगा किसी भी हालत में, एटलीस्ट 65 प्लस आपके आने चाहिए। एंड इफ़ यू डू इट वेल प्रॉपरली आप फॉलो करोगे 70 प्लस आप आराम से ला ला सकते हो। बट हाँ, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रेगुलरली मेरे पीडीएफ वीडियोस और जो क्विज भी मैं लेके आऊँगा जल्दी वो देखने पड़ेंगे। 6 मंथ्स के इनफ है। अगर आरबी आपका अक्टूबर में है, आप 1 अप्रैल से करोगे इनफ है। अब सेबी आपका 4 जुलाई को अभी है, मतलब अभी डिले नहीं हुआ है, मतलब बट उसकी जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो डिले हो चुकी है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये भी थोड़ा डिले होगा, जुलाई की जगह में भी ये आपका सितंबर के आसपास होगा, वट आई एम एक्सपेक्टिंग। बट एस सी ओनली द फ्यूचर विल टेल। ऐसे भी आजकल फ्यूचर का कुछ पता नहीं, कुछ भी हो रहा है, मतलब वर्ल्ड वाइड स्ट्रेंज सिचुएशन इज गोइंग ऑन। ओके, इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये देख लेते हैं। एक मैंने बताया था टर्शी बिल कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक करता है। दूसरा मैंने क्वेश्चन एमसीक्यू बताया कि आपका मॉनेटरी डेफिसिट क्या होता है, तो पूछ सकते हैं मॉनेटरी डेफिसिट क्या होता है, उसके 5 या 4 ऑप्शन बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं यील्ड और बॉन्ड प्राइस का क्या रिलेशन, मैंने बताया आपको एंड में पूरी वीडियो बना के पूरा बताऊंगा वीडियो के एंड में कि क्या होता है एक्चुअली, कैसे कैसे होता है मोनेटाइज्ड, व्हाट इज दिस। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन इस करंट अफेयर में से बन रहे हैं एमसीक्यूज जो मुझे दिख रहे हैं। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट। अब ये आप पूछोगे द रेगुलर हैज बॉट बॉन्ड एंड टेजिबल वर्थ ऑफ 460 में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फिगर्स ऐसी ना याद मत करने बैठ जाना, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे करंट अफेयर्स में बोलते हैं कि ये फिगर्स, और मतलब वो बेवकूफ़ी क्या करते हैं वो, मतलब मैंने कुछ देखे हैं, ये ऑनलाइन वेबसाइट देखी है, वो क्वेश्चन बनाए गए इस फिगर पे। अरे भाई ये सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में इतना है, थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में ये फिगर चेंज हो जाएगी, फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल में कुछ और हो जाएगी, फिर अगले महीने कुछ और हो जाएगी। आप हर महीने की क्या फिगर ही रटते रहोगे? फुलिश, एक्सट्रीमली फुलिशनेस। फिगर्स भी वो होती है जो स्टेटिक रहेगी पूरे साल पर। जैसे बजट में एलोकेशन आया, लेट्स से पीएम किसान स्कीम का बजट में एलोकेशन आया जितना भी है, तो ये पूरे साल तक स्टेटिक रहने वाली है ये फिगर। तो ये फिगर पूछी जा सकती है। मनरेगा का क्या बजट था, अब ये थोड़ा पूछेंगे जो हर महीने चेंज होना है। एनीवेज लेट्स गो एट सीसीआई क्वेश्चन ट्रेड। नाउ ये जो बॉडी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके। ये ध्यान रखना 2002 के एक्ट में ये पार्लियामेंट ने पास की थी, एस्टैब्लिश 2003 में, और स्टार्ट हुआ था इसका ऑपरेशन 2009 में। उसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। और ये ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है, खासतौर पे अब ज़्यादा न्यूज़ में आने लगी है जब से फेसबुक और जियो की डील हुई है, कि कहीं ना कहीं ये दोनों मिलके कंपटीशन को डिस्टोर्ट तो नहीं करेंगे। कोई भी ऐसे मर्जर एक्विजिशन में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इसके अप्रूवल के बिना वो डील अप्रूव नहीं हो सकती। ओके, सो इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, सीसीआई क्या बॉडी है। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है आपका कि वेदर इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दूसरा एग्जीक्यूटिव बॉडी या लेजिस्लेटिव बॉडी, फोर्थ ऑप्शन बना देंगे नन ऑफ दिस। तो
आपको पता है कि पार्लियामेंट जो भी बॉडी बनाती है वो होती है एक हमारी लेजिस्लेटिव को हम कहते हैं स्टैच्यूरी बोलते हैं, जो लेजिस्लेचर पास करते हैं उसको हम स्टैच्यूरी बॉडी बोलते हैं। जो भी जो इसमें सीसीआई सिंस पार्लियामेंट ने पास की थी, सो इट इज़ अ स्टैच्यूरी बॉडी। ओके। और जो सीधा प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हो जाती है बिना पार्लियामेंट के पास किए और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। जैसे नीति आयोग है, ना ही उसको पार्लियामेंट ने पास की है, ना ही वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में है। और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी वो होती है जैसे जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में किसी ना किसी आर्टिकल में वो बॉडी डिफाइंड होती है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस कमीशन, जो आर्टिकल 280 और 281 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओके, आई होप यू रिमेंबर। फाइनेंस कमीशन में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन इंडिया में है। ओके, so this current affairs can come, these types of MCQ can be asked। CCI का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि ये कब एक्ट बना था। ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। इंडिया फॉर रेजिंग इमरजेंसी हैव टू ऑफ एनडीबी। नो, एनडीपी मैंने पिछली वीडियोस में भी डिटेल में बताया था एनडीबी और एआईबी में क्या डिफरेंस है। एनडीपी के जो हेडक्वार्टर्स है वो शंघाई चाइना में है। और एक चीज़ याद रखना, जो एआईआईबी है, चाइना लेड बैंक है, ये इसके हेडक्वार्टर्स भी चाइना में, बट ये बीजिंग में है। ये मैंने पिछली वीडियो में डिटेल बताई थी इसकी। और प्रेसिडेंट इसका केवी कामत इंडियन है। ये जब से फॉर्म हुए बॉडी तब से ये इसका प्रेसिडेंट है। और ये ब्रिक्स 2014 में फॉर्म हो गया था एनडीपी। अब हुआ क्या है देखो, इसकी 5th एनुअल मीटिंग हुई है जिसको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अटेंड किया है, निर्मला सीतारमन ने। एंड उसमें क्या हुआ है, 5 बिलियन एड दी गई है इन कंट्रीज को जो इसके मेंबर्स है, दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 मेंबर्स हैं ब्रिक्स बैंक के। उसके बाद और भी मेंबर्स अब ऐड ऑन होने लगे, बट ये प्राइमरी मेंबर्स थे। इनको 5 बिलियन की एड एनडीबी देगा, बट हमारे उसमें से 5 बिलियन में से 1 बिलियन इंडिया को मिलेगी। बट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 10 बिलियन एड हमें दीजिए, 1 बिलियन इज क्वाइट लेस एड, इससे हमारा काम नहीं चलने वाला। अब 1 बिलियन, आई होप यू नो व्हाट इज $1 बिलियन। सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 130 करोड़, जिसको आपने बार बार न्यूज़ चैनल से कहीं ना कहीं देखा होगा, 1.3 बिलियन हम बोलते हैं। ओके, तो अगर 1 बिलियन 100 करोड़ है तो हाउ मच विल बी इन रुपीज़ कितना होगा। तो हम 100 करोड़ को, अभी 77 के आसपास रुपी चल रहा है, 76 पॉइंट समथिंग, तो 7700 करोड़, $1 बिलियन इज 7700 करोड़ ऑफ रुपीज़। ये आपको आना बहुत ज़रूरी है कि $1 बिलियन कितने होते हैं, $2 बिलियन कितने होते हैं, तभी आप एक आइडिया ले पाओगे। क्योंकि बजट में बहुत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि सारी फिगर्स लाख करोड़ में होएगी। आपको पता है मनरेगा का बजट इस बार का 61,500 करोड़ है। ये सिर्फ एक स्कीम है जिसका बजट 61,500 करोड़ है। अब बताओ, अगर अभी वर्ल्ड बैंक ने भी $1 बिलियन की एड दी थी, तो 7700 करोड़ कितना है। इससे कुछ नहीं होने वाला इंडिया का। इंडिया नीड्स मच मच हायर अमाउंट ऑफ मनी, दिस इज नथिंग। ओके, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, लेट्स गो अहेड और देखते क्या क्वेश्चन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक दे दिस। अब इसमें से हम बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यूज क्या क्या बन सकते हैं। पहला तो एनडीबी क्या है, इसके हेडक्वार्टर्स का है। फर्स्ट, एनडीबी का रिफॉर्म पूछी जा सकती है, जिसको हम ब्रिक्स बैंक्स भी बोलते हैं, ये याद रखना पहला क्वेश्चन इसमें से। दूसरा क्वेश्चन इसके हेडक्वार्टर का है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनडीबी ने कितनी बिलियन की अभी एड दी है। ओके, दैट इज 1 बिलियन इंडिया को और 5 बिलियन ब्रिक्स। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेबी में, अगर सेबी 4 जुलाई को है तो, ठीक है, ये आरबीआई में नहीं आएगा, आरबीआई भी काफ़ी दूर है, ये सेबी में आ सकता है, क्योंकि वो अगर 4 जुलाई को होता है तो उसमें पूछा सकता है रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने जो जो कौन सी एनुअल मीटिंग थी, दैट वाज द 5th एनुअल मीटिंग दैट शी अटेंडेड ऑफ ब्रिक्स। ओके, सो दैट इज द 4th एमसीक्यू जो पूछा जा सकता है। और प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी कौन सा है, दैट इज केवी कमत, दैट इज 5th एमसीक्यू जो पूछा जा सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल, लेट्स गो टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। 9 months on Jio, 8 billion tower deal in trouble।
अब ये ब्रुकफील्ड एक ब्रोकर है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन पूछा है रिसेंटली टॉवर के लिए कौन से जियो ने किसके थ्रू डील एंटर की है, सो दैट इज just hold. Now, why I'm giving this question is because it is the largest FDI in Indian infrastructure ever. Okay, so जियो की जो डील हुई थी इसके साथ, दैट इज द कनाडियन इन्वेस्टर, क्या नाम था उसका, ब्रुकफील्ड. ओके, तो दिस इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर. दिस ब्रुकफील्ड इज द कंपनी, और दैट आई कंफ्यूज विद वन ब्रोकर. ब्रुकफील्ड इज द कंपनी जिसके साथ डील हुई थी, आई वॉज मिस्टेकन, जियो की डील हुई थी ब्रुकफील्ड के साथ टू बाय दी जो टॉवर्स बिजनेस होता है ना उसको बाय करने के लिए, क्योंकि रिलायंस ने क्या किया है, मुकेश अंबानी हैज अनाउंस दैट द कंपनी विल बी जीरो डेट कंपनी बाय आई थिंक 2021 तक. तो वो क्या कर रहा है कि अपनी जो शेयर होल्डिंग सेल कर रहा है, जैसे अभी फेसबुक में रिसेंटली सेल की, वैसे अपने जो टॉवर बिजनेस उसने ब्रुकफील्ड को सेल किया था. लाइकवाइज वो वहाँ से पैसा गेन कर रहे हैं कि वो जीरो डेट कंपनी हो पाए 2021 तक. सो दैट इज द न्यूज़. इसमें ये पूछा सकता है कि जियो की टॉवर की किसके साथ डील हुई थी, दैट इज ब्रुकफील्ड. इनिशियली आई गॉट कंफ्यूज दैट इज अ ब्रोकर, इट्स नॉट अ ब्रोकर, और किसी और न्यूज़ में कंफ्यूज हो गया. नाउ नेक्स्ट करंट अफेयर्स इज, इसमें क्या क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बनता है कि टॉवर बिजनेस के लिए किससे डील हुई थी, विच इज द लार्जेस्ट एफडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रुकफील्ड के साथ. ओके, या फिर पूछा सकता है ब्रुकफील्ड की किसके साथ हुई थी, किस इंडियन कंपनी के साथ हुई थी, जियो. नाउ नेक्स्ट न्यूज़ आइटम ऑफ सिंगापुर जीएससी हाइक स्टेशन बंधन बैंक टू 4.9%, 1.1 से 4.49% इंक्रीज हुआ है. शुक्र है चाइना का बैंक नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बवाल हो जाता. इसमें क्या पूछा जा सकता है, दो क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, आप ध्यान से देखना. एक और एमसीक्यू बनता है कि रिसेंटली किसने स्टेक लिया है बंधन बैंक के अंदर, किसने, दैट इज सिंगापुर जीएससी. दूसरा क्वेश्चन बनता है हेडक्वार्टर्स ऑफ बंधन बैंक कहाँ पे है. ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंधन बैंक काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है आजकल. इसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है, मुंबई में नहीं, कि ज़्यादातर बैंकों के मुंबई या दिल्ली में है, तो कोलकाता में है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसके चांसेस ज़्यादा आने के. सो ये दो एमसीक्यूज आपके, टू एमसीक्यूज आपके इस करंट अफेयर में से बनते हैं. So let's go to next current affair. Red carpet for firms looking to ditch China. प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नीति आयोग और डीपीआईआईटी मिलके जितनी भी जो कंपनीज है चाइना से बाहर जाना चाहते हैं उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं. एंड दे आर सेइंग जो कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कितना अभी कॉर्पोरेट टैक्स है, और सरचार्ज और सेस मिला के वो टोटल कितना बन जाता है. और मैंने सरचार्ज और सेस बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था, एक एक चीज़ बताई थी. मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर लाइव चैट में ही बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरचार्ज एंड सेस. लेट मी सी कितना आपको पता है. ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये सब इस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस करंट अफेयर्स में. देखो, रिसेंटली प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आई थी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मोबाइल फोन्स के लिए. एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है, क्योंकि पहले भी मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका टोटल आउटले जो है, 3 स्कीमें आई थी, 48,000 करोड़ उसका टोटल आउटले है. उसमें से ये सबसे बड़ी स्कीम थी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इसका आउटले 41,000 करोड़ रुपीज़ है. ओके, दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स की बात की तो पूछ सकते हैं कि अब इंडिया का कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितने हैं. ये मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ, ठीक है. और इसमें से जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात की, नीति आयोग का चेयरमैन पूछा जा सकता है, ये थर्ड एमसीक्यूज है. ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन है. मुझे कमेंट सेक्शन है, लाइव चैट में बताओ. डीपीआईआईटी किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसका मिनिस्टर का नाम क्या है जो करंटली उस मिनिस्ट्री का नाम है, ये चौथा एमसीक्यू बनता है. और ये 4-5 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं इस करंट अफेयर में. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स, दैट इज पैनल फॉर जीडीपी डाटा रिवैम्प फॉर स्टेट. अब क्या है कि जीडीपी पहले 8% के आसपास थी. हुआ क्या था, पहले हमारी जो जीडीपी जब एनडीए गवर्नमेंट आई थी तो अराउंड इट वाज अराउंड 5-6%, 6% के आसपास थी, कमी थी. बट उसके बाद उन्होंने 2015 में डाटा को चेंज किया. पहले हमारा जो जीडीपी, जो हेडलाइन जीडीपी था, वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता था. नाउ चेंज करने के बाद क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस. मैंने पूरा फॉर्मूला आपको डिटेल में बताया था कि क्या चेंजेस किए. इसके बाद सडनली हमारी जीडीपी में जंप हो जाती है, हम 7 to 8% तक, 2% के आसपास जंप हो जाती है बाय चेंजिंग द फॉर्मूला फॉर जीडीपी. और ऐसा नहीं है मार्केट प्राइस सिर्फ इंडिया में किया गया, इंटरनेशनली भी ज़्यादातर कंट्रीज़ में मार्केट प्राइस पे ही जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं.
तो गवर्नमेंट हैज सेड कि हमने अपने जो स्टैट्स है उसको इंटरनेशनल सिस्टम से मैच किया। ओके, नाउ अब क्या हो रहा है कि फिर से हम देखेंगे कि इकोनॉमी में डाउन टर्न हो रहा है। इसी फॉर्मूले में अब 4 to 4.5% तक हमारी जीडीपी पहुंच गई है, और अब तो एस्टिमेट है आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, कि और ज़्यादा कम होगी। तो यहाँ पे आ गई है एक और नई कमेटी, रविंद्र एच ढोलकिया इज द नेम। ओके, 2018 में बैठी थी, इसका नाम फिर आ रहा है, उसके रिकमेंडेशन जल्दी आ सकते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन ऑन इट। आई एम वेरी मच एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन दैट कमेटी का नाम पूछा जाएगा जो जीडीपी को रिवैम्प करने के लिए बनाई गई है। उसका नाम है रविंद्र एच ढोलकिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरबी ग्रेड बी एंड सेबी एज वेल। मार्क दिस वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस करंट अफेयर्स में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? एक तो ये क्वेश्चन बनेगा, और बस यही क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। अब इसमें वो सजेस्ट क्या कर रहा है, ये सब करेगा, लेट इट कम। ओके, लेट इट बी एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन वी विल सी। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, रिकमेंडेशन दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट करने दो। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और बन रहा है कि किस मिनिस्ट्री ने ये उठाई है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज MOSPI। ओके, ये क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है। सो 2 MCQs इस करंट अफेयर में से बन सकते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट करंट अफेयर। 72% ऑफ कंपनीज टू टेक अ कोविड हिट, 61% टू डेफर एक्सपेंशन। नो, ये जरूरी नहीं है कि कितना होगा। ओके, जरूरी है फिक्की। फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। एक MCQ और पूछा जा सकता है इसके हेडक्वार्टर का है, जो कि दिल्ली में है। अच्छा, एक क्वेश्चन और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टैटिक क्वेश्चन है। मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये फिक्की जो बॉडी है कब फॉर्म हुई थी। जैसे मैंने CII बताया था 1895 में फॉर्म हुआ था CII, वैसे मुझे फिक्की बताओ कि फिक्की कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट टू नेक्स्ट करंट अफेयर। पेमेंट पेटीएम बैंक enters into partnership Mastercard. Let's see what is the news. Payment banks are in partnership to issue virtual and physical debit cards. चलो जी, पेटीएम के बहुत जल्दी डेबिट कार्ड्स आने लग जाएंगे, क्रेडिट कार्ड्स भी आई थिंक। सो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पेटीएम पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर दैट इज इन नोएडा उत्तर प्रदेश, ये क्वेश्चन बनता है 1 MCQ। मास्टर कार्ड के हेडक्वार्टर्स का है, ये दूसरा MCQ बनता है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है रिसेंटली पेटीएम पेमेंट बैंक हैज एंटर्ड टू पार्टनरशिप विद विच बैंक और विच एजेंसी टू इशू दी फिजिकल डेबिट वर्चुअल एंड फिजिकल डेबिट कार्ड्स। ये तीसरा MCQ आपका बन सकता है इस करंट अफेयर्स में से। ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। फेसबुक टू इन्वेस्ट दिस वन, ये अभी हम बात कर चुके हैं। अब देखो 9.99% स्टेक है। देखो एग्जैक्टली 9.9, 10% नहीं की उन्होंने। 10% करते तो FDI बन जाती है, FDI में फिर अलग रूल्स एंड रेगुलेशन लग जाते हैं। एग्जैक्टली 9.9% है। सो ये क्वेश्चन बहुत लाइकली है कि आपके आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में आएगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन इन सेबी, 100% एक्सपेक्टिंग दिस। अगर ये 9.99 है तो मैं कहूँगा 99.99% आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन इन सेबी एग्जाम एज वेल एज द आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम। ओके, लेट्स सी। ओके, नाउ फेसबुक ने इतना इन्वेस्ट करने की बात की, देखो 9.99% का स्टेक जो है वो इतना है, तो उसमें ये नहीं आएगा एग्जैक्टली, ये फिगर नहीं पूछी जाएगी कि ये फिगर याद करना। पर ये पता होना चाहिए आपको कि फेसबुक ने किसके साथ डील किया, जो जियो के साथ की है। और यहाँ पे व्हाट्सएप की बात की गई है, आपको ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट्सएप का ओनर कौन है, दैट इज फेसबुक। व्हाट्सएप को फेसबुक ने आई थिंक कुछ साल पहले खरीद लिया था, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सो इसमें से क्या 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक फेसबुक ने किसी के साथ डील की है 1, दूसरा कितना स्टेक हुआ है दूसरा, और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका कि व्हाट्सएप इज ओन्ड बाय whom, दैट इज बाय फेसबुक। ये 3 MCQ आपके इस करंट अफेयर में से बन सकते हैं। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट। सऊदी अरामको RAL डील एट रिस्क। हाँ, ये ब्रोकरेज है बर्नस्टीन, जिससे मैं कंफ्यूज हो गया था आपको ऊपर जो मैंने किया था। नाउ इसमें आपको बस ये याद रखना है कि ये डील हो चुकी है सऊदी अरामको, जो सऊदी अरेबिया की कंपनी है, और रिलायंस इंडिया लिमिटेड। ओके, मुझे कमेंट, ये एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। अब ये थोड़े ट्रबल में है। अब आपको पता होगा कि ऑयल का क्या हालत हो रहा है, यूएसए में तो नेगेटिव चला गया है। वो तो कह रहे हैं भाई आप ले लो, नेगेटिव में ले लो। और ब्रांड जो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेडमार्क है, जिससे इंडिया का मोस्टली ट्रेडिंग होती है, वो भी आई थिंक 20 के आसपास आ गया है। सो बहुत ही बुरी हालत है ऑयल की, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट पर इफेक्ट हो रही है इंडिया की, अगर हम बात करें तो इसमें से एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि सऊदी अरामको की RAL के साथ डील हुई। दूसरा जो MCQ,
दूसरा जो एमसीक्यू बन सकता है वो आपका, ये प्राइस नहीं पूछेंगे 15 मिलियन। दूसरा बन सकता है, हाँ या सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, ये ऑलरेडी मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। तीसरा बन सकता है कि सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है। मुझे लाइव चैट या कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ कि सऊदी अरेबिया की करेंसी क्या है। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट करंट अफेयर। टीसीएस इजराइल फर्स्ट फुल डिजिटल बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन इन बैंकिंग अवेयरनेस करंट अफेयर्स। टीसीएस को कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि वो वाकई डिजिटल बैंकिंग को डेवलप करेगी इसराइल की। सो इट इज़ अ बिग थिंग फॉर अ इंडियन मल्टीनेशनल। टीसीएस के लिए काफ़ी अच्छी बात है, और इंडिया के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है कि बाहर की जो कंट्रीज है, स्पेशली कंट्रीज लाइक इसराइल विच इज़ अ वेरी डेवलप्ड कंट्री, मतलब R&D और टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, वो एक इंडियन कंपनी की हेल्प ले रही है अपने डिजिटल बैंकिंग को डेवलप करने के लिए। टीसीएस से हेल्प ले रही हो। टीसीएस का BANCA सॉफ्टवेयर है जो इसको डील करेगा। तो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपका, रिसेंटली जो इसराइल है वो किस बैंक को एम्प्लॉय करे, या फिर टीसीएस किस कंट्री के साथ वो वहाँ का किस कंट्री का डिजिटल बैंकिंग वो डेवलप करेगी। ये दो एमसीक्यूज तो ये बन गए। तीसरा एमसीक्यूज कौन सा सॉफ्टवेयर है, BANCA, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी तीसरा एमसीक्यू इसमें से बन सकता है। और चौथा क्वेश्चन बन सकता है इसराइल की कैपिटल क्या है, दैट इज जेरूसलम। पांचवा क्वेश्चन बन सकता है इसराइल की करेंसी क्या है, दैट इज न्यू शेकल। शकील है, नहीं शेकल है। और देख लेना यार ये शेकल कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, जो भी है यही है, ठीक है, न्यू शकील शकील। सो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 5 एमसीक्यू इस करंट अफेयर में से बन सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। फाइनेंस कमीशन, ऐसे एक चीज़ है, मतलब ऑनलाइन में अभी लॉकडाउन की वजह से मैं आपको वीडियोस पढ़ा रहा हूँ। जो ऑफलाइन में कई बार मज़ा आता था पढ़ाने में, वो ऑनलाइन में कई बार नहीं आता, क्योंकि जो सोशल इंटरेक्शन है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। मैं एक्चुअली ये प्रीमियर कर रहा हूँ वीडियोस को, मैं लाइव करने की इसको कोशिश करूँगा, जिसमें आप लाइव सामने मैं आपसे पूछूंगा, आप चैट बॉक्स में लिख पाओगे। बट मैंने 2-3 बार पहले ट्राई किया, लाइव में कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी साउंड में, तो इसलिए मैं वीडियोस को प्रीमियर कर रहा हूँ, प्रीमियर करके लाइव कर रहा हूँ इसको। उसमें चैट बॉक्स तो लाइव चलता रहता है, बट वीडियो रिकॉर्डेड चलती है। तो मैं बहुत जल्दी इस टेक्निकल एस्पेक्ट को कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही करना है, यहाँ पे कोई मुझे हेल्प भी नहीं मिल पा रही इस वक्त। तो लाइव हो सके तो बहुत बढ़िया है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेट्स सी, लेट्स गो टू, हाँ इस करंट अफेयर में से 5 एमसीक्यू बन रहे हैं, मैंने आपको बताया। लेट्स गो टू नेक्स्ट करंट अफेयर। फाइनेंस कमीशन अगेंस्ट RBI लैंडिंग टू द सेंटर। अब हो क्या रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। फिजिकल अभी ज़्यादातर जो मेजर्स हुए हैं वो RBI ने अनाउंस किया है। जो फिजिकल पॉलिसी का तो एक ही बस 1.7 लाख करोड़ का जो पैकेज निकाला था फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसको बोला गया PM गरीब कल्याण योजना। वो भी बहुत कम है, क्योंकि उसमें से 1.7 में से सिर्फ अराउंड 1 लाख करोड़ ही मिलेगा, बाकी 70,000 करोड़ तो कंडीशनल है। जो मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी पक्का नहीं पता। तो सारे इकोनॉमिस्ट और सारे एक्सपर्ट्स ने बोला दैट इट इज़ वेरी वेरी लेस, इट इज़ ओनली 0.7% ऑफ इंडियन GDP। जहाँ की बात कर अमेरिका की, उसने 10% ऑफ GDP का पैकेज अनाउंस किया अपनी कंट्री को। बाकी काफ़ी कंट्रीज़ ने 10% ऑफ GDP तक का पैकेज अनाउंस किया है, जो बाकी फाइनेंस मिनिस्ट्रीज है। बट इंडिया ने सिर्फ 0.7% ऑफ GDP का पैकेज अनाउंस किया है। दैट इज़ वेरी वेरी लेस कंसिडरिंग द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। वो तो आपको पता ही है, 130 करोड़। जल्दी हम चाइना को ओवरटेक करेंगे, ठीक है। तो हम पॉपुलेशन के मामले में तो काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है इंडिया तरक्की नहीं करता, बहुत जगहों पे तरक्की करता भी है। ओके, लेट्स सी द न्यूज़। फाइनेंस कमीशन अगेंस्ट RBI लेंडिंग टू द सेंटर। अब फाइनेंस कमीशन का मैंने पूरा डिटेल फिस्कल पॉलिसी में किया था, और मैंने कहा था इस पे लाइकली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ESI की मैं बात करूँ, आना ही आना है। मैंने पूरा फॉर्मूला भी बताया था आपको। इसका पूरा फॉर्मूला होता है, हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन का भी फॉर्मूला बताया था, और वर्टिकल डेवोल्यूशन का भी फॉर्मूला बताया था। अगर आपको नहीं पता तो इंटरनेट पे चेक करो, या फिर मेरे से पूछ लो, मैं आपको वो हैंड आउट भेज दूंगा। उस हैंड आउट में ये ऑलरेडी है। ओके, पूरा फॉर्मूला। और अभी क्या हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी जो रिकमेंडेशन दिया वो 1 साल के लिए दिया है। अभी पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि 1 साल के लिए रिकमेंडेशन दी है, क्योंकि GST की कलेक्शन अभी स्टेबल नहीं हुई है। उन्होंने क्या किया है, अभी जो देखो, इससे पहले 14 फाइनेंस कमीशन चल रहा था, जो अंडर द लीडरशिप था YV रेड्डी। इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, और फिर से इस पर क्वेश्चन आ सकता है। उसका टाइम पीरियड 2015 से 2020 तक। अब 2020 से 2025 तक हमारा 15 फाइनेंस कमीशन होना था।
उसको देना था। फिर फाइनेंस कमीशन 5 ईयर टाइम पीरियड का देता है। ओके, अब हुआ क्या, उसने 5 साल की जगह सिर्फ 1 साल का दिया, 2020 टू 2021 दिया। ये भी मैंने आपको करा दिया था पूरा, इसका फॉर्मूला भी आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल विद यू व्हेन वी वर डूइंग दी ऑफलाइन क्लासेस ड्यूरिंग ESI लेक्चर्स। ओके, मैं फिर से ESI लेक्चर्स में इसको डिटेल में करवाऊंगा आपको। ओके, यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे तो ये तो चल गया 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, दैट इज NK सिंह, ठीक है। अब दूसरा को ये पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 280 एंड 281 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर स्टैच्यूटरी बॉडी है या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इस तरह से तीसरा MCQ बन सकता है। चौथा MCQ देखते हैं क्या बन सकता है। एस्केप क्लोज में से आपको मैंने बताया था NK सिंह कमेटी बैठी थी 2017 में फॉर FRBM रिव्यू। ये भी मैंने पूरा आपको, मैं उसमें जो प्रोविजंस थे वो मैंने बताए थे। उसमें बताया गया था, एक प्रोविजन था कि 3% FRBM का टारगेट है, बट गवर्नमेंट एक एस्केप क्लोज जो कि 0.5% ऑफ GDP का यूज कर सकती है इन केस ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो अभी इसमें वो एस्केप क्लोज की बात की गई है, 0.5% ओवर 3%। तो चौथा MCQ एक आपका एस्केप क्लोज में से बन सकता है जिसकी लिमिट है 0.5%, जो NK सिंह कमेटी के अंदर। हाँ, पांचवा क्वेश्चन ये बन सकता है कि FRBM को रिव्यू करने के लिए कौन सी कमेटी बैठी थी, दैट वाज NK सिंह। ये पांचवा MCQ बन सकता है। दैट्स ऑल कैन बी। सेक्शन 5 ऑफ FRBM एक्ट अलाउज RBI टू डायरेक्टली लेंड टू द गवर्नमेंट। ये भी पूछा जा सकता है बट चांसेस कम है कि ये पूछेंगे, chances are very very less. Okay, might be asked, so you can say 6th MCQ, but I don't think they are going to ask that much deep. So these are the 5-6 MCQs which can be found from this current affairs. Very very important for not only for your phase 1 but more so for your ESI phase 2 पेपर। वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस कमीशन में तो मैं 6 मार्कर का भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आ सकता है, 6 to 8 मार्कर। लेट्स गो टू नेक्स्ट करंट अफेयर्स। लिक्विड फंड्स GI बॉन्ड्स आर बेटर बैट्स। अब यही हो रहा है कि फ्रैंकलिन टेम्पटन ने अब स्टंट कर दिया पूरी मुंबई फाइनेंशियल मार्केट को। उसने जो 6 डेट ब्लैंक थे वो सडनली क्लोज कर दिए, जिसके अंदर 26,000 करोड़ इन्वेस्टर का मनी था। अब उससे भूकंप आ गया पूरी मार्केट में, क्योंकि ये काफ़ी रिनाउंड था, रेप्यूटेड था, और इसने ऐसा किया तो आगे जाके और भी म्यूचुअल फंड्स है वो भी कर सकते हैं। सो पैनिक सिचुएशन आ गई है। पहले कोविड-19 वजह से पूरा पैनिक था, पहले GDP स्लो डाउन की वजह से। नो, व्हाट दे आर डूइंग, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। एनीवेज, फ्रैंकलिन टेम्पटन ने क्लोज किया, ये क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट MCQ बन सकता है। और इसमें बेसिकली इस न्यूज़ में यही लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना कि द एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि आप ओवरनाइट लिक्विड फंड्स में जो शॉर्ट टर्म होते हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म होते हैं, ओवरनाइट तो बस एक दिन के लिए हो गए, लिक्विड भी कुछ ही दिन के लिए हो गए, तो उनमें इन्वेस्ट करो या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, जहाँ पे अभी भी 7.75% इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटी मतलब कि अगर कुछ भी हुआ तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती। ओके, अनटिल अनलेस हो कोई बहुत ही ऐसी गवर्नमेंट हो, मान लो सोमालिया का बॉन्ड हो या फिर सीरिया का गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रही हो, वो अलग आता है। इंडिया की गवर्नमेंट का फिर भी मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम है हमारा, तो उसमें इतना रिस्क नहीं होता जनरली। किसी भी गवर्नमेंट्स में मोस्टली एक दो को छोड़ के रिस्क ना के बराबर होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दी सब फोल्डर नंबर 1, दैट इज बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंस एंड इकोनॉमी। नाउ वी विल मूव टू सब फोल्डर नंबर 2। मैं जाने से पहले इसमें एक बार फिर बता दूं, मैंने आपको बताया, देखो 3 फोल्डर्स है। वन इज स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, और दूसरा सब फोल्डर है स्टैटिक जनरल अवेयरनेस, और तीसरा सब फोल्डर, ये सब फोल्डर नहीं, फोल्डर्स की बात कर रहा हूँ। तीसरा है आपका करंट अफेयर्स। तो पूरा 80 मार्क्स है RBI ग्रेड बी का आउट ऑफ 200। या सेबी की भी बात करो, अब सेबी का मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है कि 100 मार्क्स का अगर है तो उसमें से GA के कितने क्वेश्चन आएंगे। इट में भी 20, इट में भी 25, डोंट नो।
सो अगर मैं आरबीआई की बात करूँ तो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में, इन 3 फोल्डर्स में मैंने पूरे 80 मार्क्स आउट ऑफ 200 को डिवाइड कर रखा है। और ये जो करंट अफेयर्स फोल्डर्स है इसको मैंने 15 सब फोल्डर्स में डिवाइड कर रखा है। ये जो आपने अभी सब फोल्डर किया बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंस का, ये था आपका सब फोल्डर नंबर 1, इसका फर्स्ट सब फोल्डर था। ओके, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस मैंने अभी नहीं बनाई है, स्टैटिक जनरल अवेयरनेस की अभी वीडियोस मैंने नहीं बनाई है। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए इनकी वीडियोस बनाऊंगा, बहुत जल्दी मैं बनाऊंगा। अभी मैं करंट अफेयर्स की बना रहा हूँ और इसके अलावा मैं स्ट्रैटेजी 4 वीडियोस बना चुका हूँ स्ट्रैटेजी की, जिसमें थर्ड और फोर्थ वीडियो में पूरा का पूरा मैंने आपको 2018 का जो आरबीआई गेट बी का फेस वन था, एक एक क्वेश्चन का मैंने डिटेल एनालिसिस किया है, एंड दैट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू, ट्रस्ट मी। इसके बाद मैं फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट में स्ट्रैटेजी के 2019 के एक एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस लिखा हुआ, ये बताऊंगा कि कहाँ से आया, क्यों आया, कौन से महीने से आया, पूरा डिटेल में बताऊंगा, जिसमें 2018 का मैंने आपको बताया था। अब आ जाते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द टाइम, 40 मिनट्स। ओके, सो दिस इज सब फोल्डर नंबर 1। अब मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा जो रिलेशन है बॉन्ड, आपका ये जो सॉरी इंटरेस्ट रेट्स, बॉन्ड प्राइस और आपका बॉन्ड यील्ड, इन तीनों में क्या रिलेशन है, ये मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के एंड में बताऊंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में बताऊंगा। तो आई थिंक सफिशिएंट लेंथ की वीडियो हो गई है, लेट्स वेट फॉर पार्ट 2 की स्टार्टिंग भी मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। उसके बाद ये सब फोल्डर्स नंबर 2 to 15 मैं आपको कवर करूंगा उस वीडियो के अंदर। सो टिल देन वेट फॉर पार्ट 2। दिस इज अंकुर बदवार। इफ एनी डाउट मुझसे पूछ लीजिए, टेलीग्राम में मैं हूँ, यहाँ पे पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगता है आप कमेंट्स करते हो, मैं यहाँ से इसका जवाब देते हो, पता चलता है कि आप देख रहे हो, सच में कोई नॉलेज गेन कर रहे हो। बिकॉज मैं जो ये करंट अफेयर्स दे रहा हूँ दैट इज सफिशियंट फेज 1 फेज 2 के लिए। आपको कुछ और करने की, कोई मैगजीन, कोई XYZ, कोई मंथन, कोई पड्डा वड्डा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये करो, सिर्फ ये करो, ये काफ़ी है आपके आरबी ग्रेड बी, सेबी और नाबार्ड एग्जाम के लिए, ट्रस्ट में। ओके, बस बाकी अपना स्टैटिक में फोकस करो, क्वांट की प्रैक्टिस करो, रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, इंग्लिश की करो, ठीक है, एसए की राइटिंग करो, ईएसआई के स्टैटिक करो, फाइनेंस करो, मैनेजमेंट करो, स्टैटिक पे ध्यान दो जी। करंट अफेयर्स के लिए बस इस पे छोड़ दो, बाकी कुछ नहीं करना, दैट्स इट। ठीक है, सेकंड पार्ट में मैं आपको ये पूरा बॉन्ड यील्ड और ये बॉन्ड प्राइस पूरा जो झमेला है पूरा आपको समझाऊंगा। उसके बाद मैं सब फोल्डर 2 to 15 लेके जाऊंगा। ठीक है, सो अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, आई विल डिस्कस कि प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, इट विल रियली मोटिवेट अस। और वेट फॉर दी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल। ये फोर्थ वीक मैंने 19 to 25 ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स पूरे कवर्ड है इसके अंदर, ये फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के। ठीक है, सो थैंक यू।